Hello friends, welcome to new review. Hello students, welcome to our new video lecture which is based on AC current and DC current. Today we are going to discuss about AC and DC. First of all, in this alternating current is there. And second one for DC stands for direct current. To learn this phenomenon, first of all, I would like to tell you, please watch the video till the end. Don't forget to, don't do the double tap to extend my video to make the video fast, because of in this video lecture I'm going to explain you each and every concept in detail. Further discussion, first of all, we'll have to cover on DC and AC, alternating current and direct current, AC and DC. Now what is meant by AC? AC is nothing but the alternating current in which current changes its cycle from positive terminal to negative terminal. You know, in our we know very well, in our regulatory powerhouse supply we always said that positive and negative two cycles are there. Positive terminal is there, negative terminal is there, which is also known as live and neutral, and third wire is earthing. Earthing means what? The wire which is connected to earth. Now why should be earthing used? Earthing is nothing but the protective phenomenon which is used in the regulatory powerhouse supply to protect each and every equipment from the load, or we can say that to protect from any other reason, like I have to protect my refrigerator from short circuit or power cut, voltage fluctuation. From that I wanted to protect my equipments, that is refrigerator. So what I have exactly do, I took the refrigerator always have 3 pins, each and every appliances have 3 pins, 1, 2 and upside is there, means like this type of pin or structure of pin we are having. Downside wire is there which is connected to our appliances. Second thing, these pins are nothing but one is for positive, another is for negative, and third one is for earthing. Earthing means what? This wire, when if by mistakenly current pass in the circuit which is so extended or vast, at that time number of max amount of current should be passed throughout this wire into the earth, because earth is considered to be as a giant good conductor of electricity. देखो हम लोग अर्थिंग क्यों लगाते हैं? अर्थिंग इसलिए लगाते हैं कि अगर कहीं डिवाइसेस में ज़्यादा से ज़्यादा करंट आ गया, पावर फ्लक्चुएशन की वजह से, वोल्टेज ब्रेकडाउन की वजह से, या फिर कोई अदर रीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे, पर्टिकुलरली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यही रीज़न है किसके लिए, कोई भी रीज़न, पावर फ्लक्चुएशन है, लाइट फ्लक्चुएशन है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस है, कोलैबोरेंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस आर्टिकल में मतलब इसको ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो फिर हम लोग ऐसे केसेस में करें क्या? तो ऐसे केसेस में हम लोग अर्थिंग नाम का एक एक्स्ट्रा वायर हम लोग उसको प्लग इन करते हैं सॉकेट में. इसका काम क्या होता है? बाय मिस्टेक अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटेंडेड सोर्स आया या फिर फ्लक्चुएटेड इलेक्ट्रिसिटी आई, तो वही इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को खराब करने के बजाय ये अप्लायंस क्या करेगा? रिवोस्टैट की मदद से अर्थिंग में पास कर देगा. और अर्थिंग क्या करेगी? उसको जो वायर अर्थ को कनेक्टेड है, क्योंकि ये पूरा जाके अर्थ के अंदर कनेक्टेड होता है, कहीं पे भी जहां पे भी अर्थिंग है वहां पे जाके ये कनेक्ट हो जाएगा, और जहां पे ये कनेक्ट हो गया वहां पे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि इसका जो वेस्टेज है वो मतलब इस डिवाइस का जो डैमेज है वो भी रुक जाएगा, और जिस वजह से क्या हो जाएगा कि डैमेज होने की वजह से तो वेस्टिजियल हो जाएगा, तो वेस्टेज भी उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये तो हो गया नॉर्मल अर्थिंग के बारे में. अभी हम लोग देखते हैं करंट के बारे में. देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट. फर्स्ट वन इज AC करंट, अनदर वन इज DC करंट. AC current, alternating current, the current which changes its phase from particular cycle per cycle, means first phase for positive, then second phase stands for negative, third phase stands for positive, fourth phase stands for negative, means positive negative, positive negative, positive negative, one after another. This cycle is continued, is taken to be as a AC, in which only and only positive flows or only and only negative flows is taken to be as a direct current. Now first of all we are going to discuss about alternating current. For that I have to draw one figure, means one structure I have to draw. Here we will consider origin. ये हमारा क्या है? Origin है.
नीचे अगर देखेंगे तो अगर हम लोग अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हो गई ओरिजिन। ओरिजिन इज नथिंग बट द मीन पोजीशन। यहां पे ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मीन पोजीशन है। अब एग्जैक्टली क्या होगा देखो इसमें, अब इस मीन पोजीशन का काम क्या होता है, ये मीन पोजीशन 0 इंडिकेट करती है, ना ही पॉजिटिव इंडिकेट करता है ना ही नेगेटिव इंडिकेट करता है। ये जो है पॉजिटिव वहां से स्टार्ट होगा और नेगेटिव वहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो थिन लेयर है वही हमारा ओरिजिन है। अब ऊपर देखते तो पॉजिटिव है, नीचे देखते तो नेगेटिव है। जैसे अल्टरनेट बोलता है, अल्टरनेट में क्या होता है, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। ये ऐसा साइकिल क्रिएट होता जाएगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात कही थी, देखो साइकिल हमारा इंडिया में 220 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं एंड साइकिल जनरेट करते हैं 50 हर्ट्ज का, एंड यूएस में 110 टू 120 वोल्ट यूज करते हैं, साइकिल जनरेट होता है 60 हर्ट्ज का। दैट इज डिफरेंट। अब मुझे उस पॉइंट पे नहीं जाना है, बट यहां पे देखिए ये साइकिल मीन्स व्हाट, ये यहां से ओरिजिन से शुरू किया, एक पॉजिटिव किया एक नेगेटिव किया और ओरिजिन पे आके खत्म हो गया, बिकम्स वन साइकिल, बिकम्स वन साइकिल। सेकेंड, अब इस साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे, आपको मालूम हुआ ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मीन्स वन वाइब्रेशन। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, और इसको ही बोलते हैं हम लोग यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स व्हाट, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमारे इंडिया में 1 सेकेंड में ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कितने साइकिल आते हैं, 50 साइकिल आते हैं। तो ऑसिलेशन कितना, n इज इक्वल टू 1/t, यहां पे 1 होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो इसको हम लोगों को अपवर्ड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 50 ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में। दैट्स व्हाट इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज क्या है, यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। चलो अब अल्टरनेटिंग करंट की तरफ आते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या बोलता है, देखो अल्टरनेटिंग करंट में एक आता है पॉजिटिव एक आता है नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पे देखो एक बार पॉजिटिव आया एक बार नेगेटिव आया, एक बार पॉजिटिव आया एक बार नेगेटिव। अल्टरनेट आ रहा है एक के बाद में एक, कंटिन्यूअसली आ रहा है क्या, ये कंटिन्यू करंट बोला क्या मैं, नहीं। सीसी बोला क्या, कंटिन्यू करंट बोला क्या हमने, नहीं। हमने इसको क्या बोला है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग क्यों, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1 जो आता है उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब सेकेंड वाला होता है देखिए डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट में ना तो आपको पॉजिटिव साइकिल दिखेगा ना ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दिखेगा। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही दिखेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही दिखेगा। कैसे, देखो ये अगेन ओरिजिन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। ओरिजिन से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहां पे होगा 1, यहां पे होगा 2, यहां पे होगा 3, यहां पे होगा 4, यहां पे होगा 1 -1, यहां पे होगा -2, यहां पे होगा -3, यहां पे होगा -4। 1 पे है समझो, 2 पे है, ये ऐसा, ये हो गया डायरेक्ट। अल्टरनेट में क्या होगा, 1 2 3 प्लस में -1 -2 -3 माइनस में, बराबर। अब इसमें से डेंजर शॉक कौन सा है, मतलब डेंजरस करंट कौन सा है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या बोलेंगे, द करंट विच डू नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन और अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन हम दोनों भी डेफिनेशन बनाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट करंट का मतलब क्या एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों में। सदी के महानतम साइंटिस्ट, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था निकोला टेस्ला के बारे में, द टोटल वर्क रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग साइकिल वाज डन बाय निकोला टेस्ला। जितना भी जो भी एसी करंट में आज हम लोग इतना वास्ट डेवलपमेंट देखते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, निकोला टेस्ला की वजह से। अच्छा, इसमें दो तरह के अलग अलग डिवाइसेस लगाए जाते हैं, रेक्टिफायर एंड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, डीसी का कन्वर्जन एसी में करने का, और रेक्टिफायर का क्या होता है, एसी का कन्वर्जन डीसी में करने का। ये अलग अलग फेनोमेना है, आपको इतना डिटेल में नहीं है। अभी आपको जस्ट बेसिक क्राइटेरिया हिंट है कि व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेटिव, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट में क्या होगा, देखो डायरेक्टली फ्लो होगा, डायरेक्टली, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, there is no change in the direction is known as direct current. That's why it is known as direct current. And for alternating current we can say that here direction changes,
after particular interval of time magnitude changes, after particular interval of time direction also changes. How it will be? see, सबसे पहला यहां पे अगर देखते हैं, यहां पे ये वाला कैसा डायरेक्शन है? अप. उसके बाद में कैसा है? टुवर्ड्स राइट. नेक्स्ट डाउन, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट राइट, डाउन, राइट, अप. हो रहा है ना? देखो ये ऐसा हो गया ना, अल्टरनेट हो रहा है. तो ये स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है. अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ये तो आपको मालूम ही है. स्केलर क्वांटिटी मींस व्हाट? द क्वांटिटी व्हिच डू नॉट हैव डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. हैव ओनली मैग्नीट्यूड. यहां पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. दैट्स व्हाई स्केलर क्वांटिटी. एंड वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट? द क्वांटिटी व्हिच हैज ओन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन भी है, एक ही डायरेक्शन है, राइट, ओनली राइट साइड, एक ही डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वेक्टर. तो डीसी करंट कौन सी क्वांटिटी है? और ये एसी करंट कौन सी क्वांटिटी है? अभी आते हैं डेफिनेशन की तरफ. अब डीसी का डेफिनेशन बना देते हैं सबसे पहले. आई एम गोइंग टू इरेज दिस. सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यहां पे डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन, डीसी का डेफिनेशन. उसके बाद में बनाएंगे हम लोग एसी का डेफिनेशन. तो डीसी का डेफिनेशन कैसे बनेगा? देखिए, द करंट विच डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन रिमेन्स to flow in only one direction is known as DC current. एंड सेकेंड वाला हम लोग अल्टरनेटिंग का करंट का कैसे बनाएंगे? एक लर्न कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. मेरे सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न. मैं एसी के डीसी के पॉइंट बनाता हूं, आपको एसी के बताऊंगा भी, लेकिन आप ना डीसी के पॉइंट को कैरी करके एसी के अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. सबसे पहला यहां पे देखो, यहां पे हम लोग पहला पॉइंट बन गया. दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं? ओनली फ्लोज इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल और डायरेक्शन. थर्ड वाला पॉइंट क्या बना सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. कैन नॉट चेंजेस इट्स साइकिल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. और इसको दूसरा ये बोल सकते हैं हम लोग, इट हैज डायरेक्शन. अब एसी के पॉइंट देखते हैं. एसी में क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपको आया कि डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करो, तो अब डीसी का एक ही लर्न करना, एसी का लर्न नहीं करना. डीसी का एक लर्न करना, उसके अपोजिट जाके आप एसी का लिख सकते हो. देखो डीसी का क्या है? सबसे पहला पॉइंट, द करंट विच डू नॉट चेंजेस इज डायरेक्शन रिमेन्स टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज डीसी करंट. एसी में क्या करोगे? द करंट विच फ्लोज, द करंट विच डू नॉट कट जाएगा, ओनली क्या आएगा? चेंज. The current which change its direction and do not, यहां पे का do not यहां पे आएगा, do not to flow in only one direction is known as AC current. Okay. Second, only flows in positive or negative cycle. It flows in both positive और कट जाएगा और वहां पे and लगेगा. only कट जाएगा, flows in positive and negative direction. वेक्टर क्वांटिटी वहां पे आएगा. स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इट हैज मल्टीपल डायरेक्शन, अप, राइट, डाउन, अगेन अप, अप, राइट, मल्टीपल डायरेक्शन. 4 पॉइंट ये लर्न कर लिया, वो 4 पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो गए. ये था आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू एसी एंड डीसी करंट. अभी आते थोड़ा सा हम लोग हमारे कंटेंट से थोड़ा सा बाजू में चलते हैं. आते हैं निकोला टेस्ला के बारे में. निकोला टेस्ला सदी के महानतम साइंटिस्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड माइन फेवरेट, वन ऑफ माइन ग्रेट साइंटिस्ट आई हैव टू कंसिडर एज, बिकॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द फेनोमेनन जितने भी आज हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पूरा निकोला टेस्ला की ही देन है. हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ टोटली गिवन बाय निकोला टेस्ला ओनली.
Now in that article or in that case what we can discuss, see this direction, all the things are there, but alternating current invented by Nikola Tesla. उन्होंने ही अल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट किया था, बाद में जाके सबने इसका क्रेडिट अपने अपने हिसाब से ले लिया, लेकिन व्हेन ही हैज़ डिस्कवर ऑल दिस क्राइटेरिया, ऑल दिस मेंशंस, ही हैज़ मेंशन हिज वर्क टू, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ वन ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट. वो टाइम मशीन के बारे में भी सोच रहे थे. आजकल ये फ्रिक्शनल मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि एक उड़न तश्तरी आती है, तो ये ऑलरेडी डिज़ाइन बनाया था निकोला टेस्ला ने. He has already made such a type of design and he used to do, because उसने ये कहा था, मैं आपको टाइम मशीन की थियरी भी बताता हूँ. निकोला टेस्ला ने ये कहा था कि अगर हम लोग अर्थ के रोटेशन की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर उल्टा घूमते हैं, ज़्यादा स्पीड से अगर उल्टा घूमते हैं, तो वी कैन मूव फॉर इन टाइम मशीन जोन. मतलब हम लोग पीछे जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, पीछे जा सकते हैं. तो ये उसने निकोला टेस्ला ने बताया था. लेट इट बी, मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बस इतना बताना है, एसी के अंदर जितने भी क्रेडेंशियल्स आए, जितने भी मोटर आई, एम्पलीफायर आया, रेक्टिफायर आया, जितने भी चीज़ें आई, ये सारी की सारी चीज़ें निकोला टेस्ला की ही देन है. I hope you understand this phenomenon. If still you have a doubt, so you can ask me in the comment box which is given below. Otherwise, subscription button is there, you have to press that button and make all the notification to all. Because of that only you will get the notification. Whenever I upload the video, you will get the notification. If you have a doubt, so don't forget to ask. Otherwise, like, share, subscribe, and like, share, subscribe. Thank you. I hope you enjoy the video. If you like this, so don't forget to like, share, and comment. Thank you.